morning student. Bharati College of Engineering Technology Durg, B 7th semester Computer Science Engineering, subject on Network Programming. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. Today's our topic UUCP, Unix to Unix Copy Protocol. So, what is UUCP? UUCP, Unix to Unix Copy Protocol, is a set of Unix program for copying. Copying means sending files between different Unix systems. Different जो Unix systems रहते हैं उसके बीच फाइल सेंडिंग करना है, कॉपी करने के लिए Unix प्रोग्राम होता है. And for sending commands to be executed on another system, जो दूसरे सिस्टम होते हैं उसमें कमांड को सेंड भी कर सकते हैं. द मेन UUCP commands each supported by a UUCP programs are first UUCP. What is UUCP? Which requests the copying of a specific file to another specific system. UUCP जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है कॉपी के लिए फॉर एक स्पेसिफिक फाइल को दूसरे स्पेसिफाइड सिस्टम में. सेकंड UUX, which sends a Unix command. Which sends a Unix command to another system where it is queued for execution. Next, UUCICO, which runs on a Unix system as the program that carries out the Unix, the copying and initiates execution of the commands that have been sent. Typically, this program is run at various time of day. Meanwhile, the copy UUCP and command UUX requests are queued until the UUCICO program is run. So, there are different commands on UUCP. Next, UUXQT, which executes the commands sent by Unix, usually after being started by the UUCICO program. The UUCICO programs are the programs that actually communicate across a network. Okay, there are several network protocols variations on packet size and error checking that can be used by UUCICO program depending on the kinds of carrier networks being used. Next, XNS, X-ray network system. We need to take a brief look at the X-ray network systems. XNS model developed at Palo Alto Research Center PARC because several of major lens vendor, notably Novell and Bion, have based portion of their NOS on the XNS model. Seen the X-ray network systems. So फिगर 1 में हम देख सकते हैं किस टाइप से XNS का जो प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर आता है
वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन से मिलकर बने होते हैं। So first of all, XNS protocol. XNS protocol, next step is communication device driver, other Ethernet IEEE 802.3. तो this step is communication device driver. Next step on network interface modules. Network interface modules. Then next step, inter-network datagram. Inter-network datagrams are also connected. Next step, there are different services. First of all, packet exchange. इसमें पैकेट को एक्सचेंज किया जाता है, जितने भी पैकेट्स रहते हैं. नेक्स्ट वन इज राउटिंग इन्फॉर्मेशन. इस वाले में जितने भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन रहता है, कंप्यूटर जो नेटवर्क लेयर रहता है उसमें मेन जो प्रोटोकॉल रहता है वो राउटर होता है. उसमें राउटिंग के सारे इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल रहते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन में. नेक्स्ट, सीक्वेंस पैकेट. अब क्या होता है, पैकेट को सेंड करने के लिए जब हम सेंड करते हैं नेटवर्क में तो सीक्वेंस नंबर अलॉट किया जाता है, ताकि सपोज़ हमने 10 पैकेट सेंड किए, ज़रूरी नहीं है कि वो 10 पैकेट जो हमने सेंड किए है वो एक ही नेटवर्क से होते हुए जाए, अलग अलग नेटवर्क से भी जा सकते हैं. तो हम उसमें पैकेट सीक्वेंस नंबर दे दिया जाता है, ताकि जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वो उस पैकेट सीक्वेंस नंबर से उस पैकेट को अरेंज कर सकें. नेक्स्ट, एरर. यहाँ पे अगर कोई भी एरर आता है पैकेट सेंडिंग करने में या फिर कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करने में, जो भी एरर आता है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ इको. देन नेक्स्ट स्टेप, सर्विसेज सॉकेट. यहाँ पे क्या होता है, सर्विसेज सॉकेट. सर्विस देने के लिए डेटा मतलब जो भी पैकेट्स हैं फाइल्स है ट्रांसफ़र करने के लिए जो सर्विस होते हैं, सर्विस देते हैं, उसके लिए सॉकेट क्रिएट किया जाता है. नेक्स्ट इज कुरियर RPC. इसमें देर आर डिफरेंट सर्वर्स, क्लियरिंग हाउस, नेम सर्वर, फाइल सर्वर. नेक्स्ट वन इज प्रिंट सर्वर. तो यहाँ पे क्लियरिंग हाउस ये जो है XNS जो प्रोटोकॉल होता है उसका मेन एप्लीकेशंस यूज़ हुआ होता है, क्लियरिंग हाउस. नेक्स्ट इज़ अ फाइल सर्वर. यहाँ पे जितने भी फाइल सर्वर रहते हैं, फाइल्स वगैरह रहते हैं, वो इस सर्वर पे स्टोर होते हैं. यहाँ से डायरेक्टली क्या होता है, ट्रांसफ़र होते हैं फाइल्स. देन प्रिंट सर्वर में जैसे अपन प्रिंट देते हैं किसी फाइल को, तो प्रिंट सर्वर से क्या होता है, ये प्रिंट जाता है. नेक्स्ट वन इज अ पब्लिक डोमेन फ्री सोर्सेज. So this architecture is a XNS protocol architecture. Next, XNS application. XNS applications also defines standard for application level function. First is a clearing house for data network resources such as addresses. ये जो होता है हमने देखा है जो नेटवर्क XNS नेटवर्क प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर था उसमें हम क्या देखे थे, क्लियरिंग हाउसेस करके एक नेम सर्वर होता था. ये जो होता है वो मेनली एड्रेस के स्टोर करने, होल्ड करके रखने के लिए होता है. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी सर्विसेज. XNS प्रोटोकॉल जो होता है वो ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी सर्विस भी प्रोवाइड करता है. थर्ड वन इज़ टाइम स्टैम्पिंग इन्फॉर्मेशन. जितने भी टाइम स्टैम्पिंग इन्फॉर्मेशन रहते हैं वो प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन इज़ कैरेक्टर कोड स्टैंडर्ड्स. जो कैरेक्टर कोड स्टैंडर्ड्स होते हैं ये भी XNS एप्लीकेशंस के अंदर आते हैं. नेक्स्ट वन इज़ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड इंटरचेंज. यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट रहते हैं वो सब
मैनेज किया जाता है XNS प्रोटोकॉल से सर्विस के एप्लीकेशंस के द्वारा, और उसको इंटरचेंज भी किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ अ प्रिंट फाइल एंड मेल स्टैंडर्ड्स। अगर हम किसी भी फाइल को या जो हमारा पैकेट्स हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट हैं, उसको अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, किसी भी फाइल को सेंड करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, तो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द सेवरल एप्लीकेशंस इन XNS protocol. So I hope you are clear this applications XNS and UUCP, Unix to Unix copy protocol, and XNS. So thanks for watching this video. Thank you.